اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم عربی گرامر میں مرکب ناقصہ کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں۔ آج ہم ایک ایسا مرکب ناقص سیکھیں گے جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے یا جو عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ہم اس مرکب کا استعمال اپنی زندگیوں میں اپنے ناموں میں بھی کرتے ہیں، لیکن شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آج جب یہ ہم مرکب پڑھیں گے تو قرآن کا زیادہ حصہ ہمارے سامنے آسانی سے کھل جائے گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑی دہرائی کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آج ہم مرکب تام کو ڈسکس نہیں کریں گے، یعنی کہ ایسا مرکب جس میں بات پوری ہو جائے، جیسے ہم نے جملہ اسمیہ سیکھا جس میں مبتدا اور خبر تھی، یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آج ہم مرکب ناقصہ کو تھوڑا ریوائز کریں گے۔ مرکب ناقصہ ایسے مرکب جو بات پوری نہ کرے، یعنی ادھوری بات کریں۔ اب تک ہم نے 1، 2 اور 3 مرکب ناقص سیکھے ہیں۔ پہلا جو مرکب ناقص تھا وہ تھا مرکب توصیفی، دوسرا مرکب ناقص تھا مرکب اشاری۔ آج جو ہم تیسرا مرکب ناقص سیکھیں گے وہ ہے مرکب اضافی۔ مرکب توصیفی 2 چیزوں کا مجموعہ، ایک موصوف اور دوسرا اس کی صفت، یعنی ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے۔ مرکب اشاری بھی 2 چیزوں کا مجموعہ، ایک اشارہ، اسماء اشارہ، اور دوسرا مشار الیہ۔ یہ ہم نے اپنی کلاسز میں سیکھا ہے، ان کی وضاحت بھی کی ہے، ان کے بارے میں ہم نے تھوڑی قرآن سے مثالیں بھی دیکھی ہیں۔ آج ہم مرکب اضافی سمجھیں گے۔ مرکب اضافی بھی بالکل انہی کی طرح دو چیزوں کا مجموعہ ہوگا، یعنی جیسے مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت آیا، مرکب اشاری میں اشارہ اور مشار الیہ آیا، اسی طرح مرکب اضافی میں بھی الفاظ آئیں گے، 2 الفاظ آئیں گے۔ پہلے ہم موصوف کی ایک مثال اردو میں دیکھ لیتے ہیں، جیسے اچھا خانہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو اچھا خانہ ہے، خانہ تو ایک چیز کا نام ہے، اچھا اس کی صفت ہے۔ خانہ کس نوعیت کا ہے، کیسا ہے، وہ اچھا ہے، ہم اس کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو خانہ ہے یہ ہو گیا موصوف اور اچھا ہو گیا صفت۔ اس کے بعد اشارہ، اسماء اشارہ، یہ خانہ، ٹھیک ہے، یہ خانہ۔ اب دیکھیں یہ خانہ، یہ جو ہے ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں بات مکمل نہیں ہوئی۔ آپ ان دونوں میں دیکھیں، اچھا خانہ، کیا اچھا خانہ، ہم بات مکمل نہیں کر رہے ہیں نا۔ یہ خانہ، کیا یہ خانہ، ابھی سوال آ رہا ہے کہ ابھی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور یعنی مرکب ناقصہ ایسے مرکبی ہوتے ہیں جو بات پوری نہ کریں۔ ہم ان کو انشاءاللہ پھر جملوں میں جوڑ کر پھر بڑے بڑے جملے انشاءاللہ بنانے شروع کریں گے۔ ابھی بس چھوٹے چھوٹے الفاظ کو آپس میں جوڑنا ہم سیکھ رہے ہیں، یہ ہماری شروعات ہے، یوں سمجھے جملے کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے 2 یا 3 الفاظ کو آپس میں جوڑنا، پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں، انہیں مرکبات کے نام سے پڑھایا جاتا ہے، مرکب توصیفی، مرکب اشاری۔ اب چلتے ہیں مرکب اضافی کی طرف۔ مرکب اضافی کی 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے لکھتی ہوں، آپ دیکھیے گا، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس مرکب میں ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ جیسے دیکھیں، زید کی کتاب۔ اب اس میں دیکھیں، زید کی کتاب یا حامد کا قلم، زید کی کتاب، حامد کا قلم۔ شہر کے لوگ، سمجھ میں آ رہا ہے ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ مرکب اضافی۔ اور مرکب اضافی ایک ایسا مرکب، اس کی وضاحت کو نوٹ کر لیں، مرکب اضافی کی وضاحت ہے یہ ایک ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم سے تعلق جوڑے، یا جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا جائے، ان کے بیچ میں نسبت قائم کی جائے، تعلق قائم کیا جائے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر زید کی کتاب، اب یہ جو کتاب ہے ہم اس کو کس کے ساتھ جڑیں؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ زید کی کتاب ہے۔ ہم کتاب کا تعلق زید سے کر رہے ہیں، یا پھر زید کا تعلق کتاب سے کر رہے ہیں۔ حامد کا قلم، اگر مجھ سے کوئی پوچھے یہ کس کا قلم ہے تو میں قلم کی نسبت کس کی طرف کروں گی؟
جس کا وہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ حامد کا قلم. شہر کے لوگ, اب یہ لوگ کہاں کے ہیں, کوئی پوچھتا ہے نا یہ لوگ کہاں کے ہیں, گاؤں کے ہیں یا کہاں سے آئے ہیں, تو شہر کے لوگ ہیں یہ. تو ہم ایسے نسبت کو یعنی اسم کو اسم سے جوڑیں گے کن الفاظ کے ذریعے, ان الفاظ کے ذریعے, کے, کا اور کی, کا اور کے. ٹھیک ہے, ایسے اگر آپ کو الفاظ ملے یعنی کی, کا, کے ذریعے جڑے ہوئے تو یہ آپ مرکب اضافی سمجھیے گا. اب ہم چلتے ہیں مرکب اضافی کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی طرف, یعنی عربی میں ہم ان الفاظ کو زید کی کتاب, حامد کا قلم, شہر کے لوگ یا ان جیسی اور بھی مثالیں ہیں ان کو ہم عربی میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے, اور پھر ہم انشاءاللہ آج ہی قرآن سے مثالیں بھی دیکھیں گے. اور پھر ٹیسٹ کے لیے میں انشاءاللہ آپ سے کچھ غلط یہاں پر مرکب اضافی کی مثالیں لکھوں گی, آپ نے ان میں غلطی کی نشاندہی کرنے کی کون کون سی غلطی ہے. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں. اب ہم قدم بڑھاتے ہیں. یہ جو مرکب اضافی ہیں یعنی جس میں ایک اسم دوسرے اسم سے جوڑا جائے, ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق بیان کیا جائے, یا ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے, ان میں ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے, جب یہ جوڑا جائے اس سے مرکب اضافی کہتے ہیں, یعنی اضافت دینا, جوڑنا, ملانا. تو ہم چلتے ہیں ان کے رولز کی طرف اور ان کا ترجمہ کرنے کی طرف. اب دیکھیں مرکب اضافی بھی دو الفاظ کا ہی مجموعہ ہے. جیسے دیکھیں زید کی کتاب یا پھر فاطمہ کا قلم. ٹھیک ہے, کے اور کا اور کی ان کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. کے, کا یا پھر کی, اس میں ان کے لیے آپ کو عربی میں کوئی لفظ نہیں ملے گا. بالکل اسی طرح جیسے آپ کو جملہ اسمیہ میں ہے کے لیے عربی کا کوئی لفظ نہیں ملا تھا. جب ہم کہتے تھے کہ زید کھڑا ہے تو ہم نے عربی صرف زید اور کھڑا کی تھی, ہے کی نہیں کی تھی. ہے کو ہم نے کٹ کر دیا تھا, اور ہم نے دیکھا تھا کہ رولز کے تحت کچھ رولز ایسے ہوں گے, یعنی معرفہ اور نکرہ, مبتدا معرفہ آئے گا اور خبر نکرہ آئے گی, اس حساب سے ہمیں ہے کا مفہوم خود ہی مل جائے گا. یہاں پر بھی ہمیں کے یا کی کا مفہوم خود ہی مل جائے گا. بس ہم نے ان دو الفاظ پر فوکس کرنا ہے, زید کی کتاب اور فاطمہ کا قلم. ہم اردو میں ایسے کہیں گے, لیکن عربی زبان میں سب سے پہلے کتاب کو ہم اس طرف رکھیں گے اور زید کو ہم اس طرف رکھیں گے. یہاں پر بھی ایسا ہی کہہ لیں, قلم کو آپ نے اس طرف رکھا اور فاطمہ کو آپ نے اس طرف رکھا. زید کی کتاب اور فاطمہ کا قلم. کتاب کا تعلق زید سے جوڑا جا رہا ہے تو کتاب کو ہم مضاف کہیں گے. کتاب کیا ہے؟ مضاف ہے, یعنی مضاف جس کے ساتھ نسبت دی جائے. اب کس کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے, یعنی کتاب کو کس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے؟ کتاب کو زید کے ساتھ ملایا جا رہا ہے, تو یہ ہو جائے گا مضاف الیہ. مضاف الیہ. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح جیسے اشارہ اور مشار الیہ, بات کو سمجھتے چلی جائے گا. اس میں اشارہ جو اشارے کے لیے اسماء استعمال ہوتے ہیں, اور مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. اب یہ بھی ہے مضاف الیہ, یعنی جس سے نسبت قائم کی جائے. کتاب کا تعلق ہم کس سے قائم کر رہے ہیں؟ زید کے ساتھ. یعنی یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ زید کی ہے, تو زید مضاف الیہ ہے, یعنی جس سے نسبت جوڑی جائے. کتاب کا ہم تعلق زید سے جوڑ رہے ہیں تو کتاب مضاف ہے اور زید مضاف الیہ. یہاں پر بھی آئیں, قلم ہمارا ہو جائے گا مضاف اور فاطمہ ہو جائے گا ہمارا مضاف الیہ, یعنی جس کے ساتھ نسبت دی جائے, جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے, جس کے ساتھ جوڑا جائے. مرکب اضافی ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا جائے, ان کا تعلق قائم کیا جائے. آپ جیسے بھی آپ کو آسان لگے اس حساب سے آپ ڈیفینیشن کر سکتے ہیں. تو ہم اب چلتے ہیں ان کے قواعد کی طرف. دیکھیں ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے, عربی میں بدلنے سے پہلے ہمیں پہلے کچھ رولز دیکھنے ہیں. مضاف کے کچھ اپنے رولز ہیں اور مضاف الیہ کے کچھ اپنے رولز ہیں. بالکل اسی طرح جیسے مبتدا کے اپنے رول تھے اور خبر کے اپنے رول تھے. تو مبتدا معرفہ آتا تھا اور خبر نکرہ آتی تھی. اگر مبتدا واحد تھا تو خبر بھی واحد تھی. اس طرح سے یہ رولز تھے نا. بالکل اسی طرح جیسے موصوف اور صفت, اشارہ اور مشار الیہ,
ये एक दूसरे को फॉलो करते थे, यानी जैसे सिफत वैसे ही मौसूफ, जैसे इशारा वैसे ही मुशारन इलैह। मुजाफ और मुजाफ इलैह के भी कुछ कायदे हैं, लेकिन ये जो कायदे हैं ये उनकी तरह नहीं है, इसके अपने कायदे हैं। और मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स अगर उनको कायदे जहन में ना हो तो अरबी उन्हें मुश्किल लगती है, या उन्हें लगता है कि बस उनसे नहीं होगा और उन्हें नहीं आएगा, या वो तर्जमा करते वक्त जब अरबी का उर्दू में या उर्दू का अरबी में जब वो तर्जमा करते हैं तो कवायद याद ना होने की वजह से उनसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि हमें नहीं आएगा। तो मैं आपको बहुत सख्ती के साथ कह रही हूँ कि इन कवायद पर गौर कीजिएगा, और जब भी आप मुरकब इजाफी को अरबी में लिखें तो ये कायदे आपके जहन में होने चाहिए। अगर ये कायदे आपके जहन में नहीं होंगे तो हम ई और का मफहूम कैसे हासिल करेंगे? ई और का मफहूम उन कवायद से हासिल होता है। सही है, बात समझ गए? अब मुजाफ का कायदा क्या है? मुजाफ का जो पहला कायदा है वो है मुजाफ का एराब हल्का होता है। मुजाफ का एराब हल्का। अब इसका क्या मतलब है कि मुजाफ का एराब हल्का होता है? देखिए, एराब हमने पढ़ा था, जैसे दो पेश, अगर किसी मुजाफ पर दो पेश या दो जबर या दो जेर आए तो हम उस दो पेश को, दो जबर को या दो जेर को एक पेश, एक जबर और एक जेर में कर देंगे। सही है, यानी मुजाफ, ये जो किताब है ना, जब हम किताब को ट्रांसलेट करेंगे, जब हम किताब को अरबी में लिखेंगे तब हम किताब बुन नहीं लिखेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमने किताब बुन नहीं लिखना, या किताब बन नहीं लिखना, या किताब बिन नहीं लिखना, किताब बू लिखना है। सही है, पहला कायदा एराब हल्का होगा। इसका मतलब है कि जब हम अरबी में मुजाफ को लिखेंगे तो हम उस पर तनवीन नहीं लगाएंगे, एक पेश लगाएंगे। दूसरी बात, एराब सिर्फ दो पेश, दो जबर और दो जेर का नाम नहीं है। एराब में आखिर में वाउ नून भी आता है, जैसे मुस्लिमून और मुस्लिमीन। ठीक है, मुस्लिमून ये हालत रफा है, मुस्लिमीन और मुस्लिमीन ये हालत नसब और जर है, ये भी एराब ही है। अगर आपको एराब का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से याद होगा, समझा हुआ होगा, तब आपको मुरकब इजाफी समझ में आएगा, वरना आपको मुरकब इजाफी समझ में नहीं आएगा। तो एक तो तनवीन हो गई दो पेश, अगर दो पेश हो तो हमने एक पेश के साथ उसे हटा देना है। लेकिन आपको पता है मुसन्ना और जमा सालिम का एराब दो पेश दो जबर से नहीं आता, वो एराब बिल हर्फ आता है, एराब बिल हरकत नहीं आता। एराब बिल हर्फ क्या है, एराब बिल हरकत क्या है, ये आपने खुद समझना है, सीखना है। ये पीछे की क्लासेस हैं जो हम सीख आए हैं। अभी देखें, अगर मुस्लिमून, मुस्लिमीन या मुस्लिमैनी ये आए तो आपने एराब कैसे हल्का करना है? यहाँ पर तो आपने तनवीन को एक पेश, एक जबर, एक जेर कर दी, लेकिन जिनमें तनवीन ना आती हो, जिस एराब में तनवीन ना आती हो, उसका आपने नून गिरा देना है, नून गिरा देना है। ये समझिएगा, उस पर आपने नून नहीं लगाना। प्रैक्टिस से बात इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ी कोशिश करें कि जहन में रखें कि एराब हल्का होगा, मुजाफ का एराब हल्का होगा। मुजाफ का कायदा नंबर 2 है, ये मुजाफ के कवायद हम पढ़ रहे हैं। दूसरा कायदा है कि मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा, अलिफ लाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मुजाफ का कायदा है, मुजाफ अलिफ लाम के बिना आता है, तो मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा। यानी देखें, हमने पढ़ा था किसी भी इस्म को पहचानने की दो सूरतें होती हैं। नोट कीजिएगा, किसी भी इस्म को पहचानने की कितनी सूरतें होती हैं? दो, या तो अलिफ लाम या फिर तनवीन। अगर आप किसी भी इस्म पर अलिफ लाम या तनवीन देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस्म है। अरबी ज़बान में अगर आप देखना चाहते हैं कि इस्म कौन सा है, तो या तो उसमें अलिफ लाम होगा या तो तनवीन होगी, दोनों साथ नहीं होंगे। मसलन मैं अगर लिख रही हूँ मुस्लिमुन, समझिएगा, ठीक है, मुस्लिमुन, तो ये मुन हमें बता रहा है कि ये इस्म है। मसलन अगर किसी को मुस्लिम का
मतलब पता ना हो कि ये क्या है, तो इसकी तनवीन देखकर आपको ये अंदाजा जरूर हो जाएगा कि ये यहाँ पर इस्म है। सही है। और यहाँ पर अगर मैं अल मुस्लिम लिखूं, अल मुस्लिम, तो मैं अल मुस्लिमुन नहीं लिखूंगी, कभी नहीं। मैं अल मुस्लिमुन नहीं, अल मुस्लिमू लिखूंगी, क्योंकि अगर अलिफ लाम आ गया तो तो फिर पेश एक हो जाती है, यानी डबल पेश चली जाती है, तनवीन चली जाती है। यहाँ पर ये क्या है, एक तो तनवीन भी नहीं आएगी, दूसरा अलिफ लाम भी नहीं आएगा, यानी कि आपने इस तरह लिखना है मुजाफ को, मुस्लिमू। देखें अलिफ लाम नहीं, अलिफ लाम है इसलिए एक पेश है, यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है फिर भी एक पेश है। क्यों? क्योंकि ये मुजाफ के तौर पर हमने लिखा है, तो मुजाफ पर तनवीन नहीं आएगी, यानी इसका एराब हल्का होगा, और उस पर अलिफ लाम भी नहीं आएगा। ये है मुजाफ के कायदे। अब मुजाफ इलैह का एक कायदा देख ले, इसका एक ही कायदा है। ये जो हमने कायदे सीखे ये मुजाफ के थे, अब हम जो कायदा सीख रहे हैं वो मुजाफ इलैह का है, और मुजाफ इलैह का एक ही कायदा है, वो हमेशा हालत जर में होगा। मुजाफ इलैह हमेशा आपको हालत जर में मिलेगा। अब हालत जर क्या है, ये भी आपको एराब जब आप पूरी तरह समझ लेंगे, सीख लेंगे या सीखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हालत जर क्या है। मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा, चाहे कोई भी सूरत हो। मुजाफ का एराब बदलता जाएगा, यानी वो हालत नसब में भी होगा, हालत जर में भी होगा, हालत रफा में भी होगा, लेकिन मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होगा। तीन ये कवायद हैं जो आपने मुजाफ और मुजाफ इलैह के हवाले से समझने हैं। मुजाफ का पहला कायदा एराब हल्का होगा, यानी तनवीन नहीं आएगी, और जिन अस्मा पर तनवीन ही नहीं आती एराब के हवाले से उनका नून गिर जाएगा। और दूसरा मुजाफ का कायदा ये है कि उस पर अलिफ लाम नहीं आएगा। जब भी आपको कोई इस्म अलिफ लाम के बगैर या तनवीन के बगैर मिले, यानी उसमें ना अलिफ लाम हो और ना ही तनवीन हो, तो आपने समझ लेना है कि यहाँ पर मुजाफ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और फिर आपने उसका मुजाफ इलैह ढूंढना है। ठीक है, तो मुजाफ इलैह क्या है, ये हमेशा हालत जर में होगा। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। किताबु, अब हम किताब को अरबी में किताब ही कहते हैं। किताब को लिखने की हमारे पास तीन सूरतें हैं। या तो मैं यहाँ पर लिखूंगी किताबुन, यानी कि तनवीन के साथ, या मैं लिखूंगी अल किताबू, यानी अलिफ लाम के साथ, और अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आती, या फिर मैं इसे लिखूंगी किताबू, यानी ना ही अलिफ लाम और ना ही तनवीन। किताबू, किताबुन, अल किताबू या फिर किताबू। तो कवायद के मुताबिक ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है, किताबू। अब ज़ईद को लिखने के भी मेरे पास तीन ही रास्ते हैं। मैं ज़ईद को इस तरह भी लिख सकती हूँ, ज़ईदुन, ज़ईदिन, ज़ईदन, और फिर ज़ईदिन। ठीक है, अब इसमें कौन सा सही है? मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है, तो ज़ईदुन भी सही नहीं है, ज़ईदन भी गलत है, और ज़ईदिन ये सही है। तो किताबू ज़ईदिन, ज़ैद की किताब। की का मफ़हूम इन तीन कवायद के जरिए आ गया। एक, अलिफ लाम भी नहीं है, दूसरा एराब भी हल्का है, तीसरी चीज हालत जर में है, तो किताबू ज़ईदिन। अच्छा, आप मुजाफ इलैह पर अलिफ लाम लगा सकते हैं, हम यहाँ पर अल ज़ईद लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ज़ैद पर अलिफ लाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़ैद खुद ही इसमें अलम है। अलिफ लाम हम किसी आम इस्म को खास करने के लिए लगाते हैं, जैसे किताब, कोई भी किताब, अगर मैं अल किताब कहूँ तो कोई खास किताब होगी, लेकिन ज़ैद तो वैसे ही खास है, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो वैसे ही खास होते हैं, उन्हें हमें प्रॉपर करने के लिए अलग कोई कायदा नहीं होता, तो हम यहाँ पर अल नहीं लगाएंगे। अगर कोई आम इस्म होता तो हम उस पर अल लगा देते। आप मुजाफ इलैह पर बिना मर्जी बेझिझक अल लगा दें, ठीक है, बेझिझक मुजाफ इलैह पर अल लगा दें, मुजाफ पर आपने अलिफ लाम नहीं लगाना। किताबू ज़ईदिन, ज़ैद की किताब। अब यहाँ पर आए, कलम को भी इसी तरह हमने कलमुन, अल कलमू या कलमू लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कलमू, क्योंकि इस पर अलिफ लाम भी नहीं आएगा और इसका एराब भी हल्का होगा। याद कर लें, जहन में बिठा लें, कलमू। फातिमा, अब मेरे पास फातिमा तू हालत रफा भी है, फातिमा त हालत नसब भी है,
फातिमत हालत नसब भी है। आपको पता है फातिमा का जो एराब है वो हालत नसब में और हालत जर में एक जैसा आता है। क्यों आता है ये सीखने के लिए आप एराब की क्लासेस देख सकते हैं। तो कलम फातिमा क, यहाँ पर ये जो फातिमा क है ये त हालत जर है। आपको याद है एक वक्त था कि मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह हम ये आगे सीखेंगे कि हालत जर में कोई भी इस्म क्यों आता है या हालत नसब में क्यों आता है या हालत रफा में क्यों आता है। अब तक हमने ये समझा है कि मुब्तदा हालत रफा में होता है, खबर हालत रफा में होती है। अब हमने ये भी देखा कि मुज़ाफ इलैहि हमेशा हालत जर में होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता बातें हमारे सामने खुल रही हैं। कलमु फातिमा त ये हालत नसब नहीं है, आपने धोखा नहीं खाना। कलमु फातिमता फातिमा का कलम। अब हम कुछ मुसन्ना और जमा की प्रैक्टिस भी साथ में करते हैं। यहाँ पर हम वाहिद की मिसालें देखते हैं, यहाँ पर मुसन्ना की और यहाँ पर जमा की। सही है। वाहिद की हमारे पास मिसाल है ज़ैद की किताब, ये हम कर चुके। अब नूह की कौम, नूह की कौम, पहले हमने कौम लगाना है उसके बाद नूह लगाना है। नूह की कौम, कौम मुजाफ और नूह मुजाफ इलैहि। कौम का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम से है, तो नूह की कौम। कौम के लिए यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ है कौमु, कौमु, अल कौमु नहीं, कौमुन भी नहीं, कौमु। और नूह के लिए हमारे पास नूहुन, हन और हिन है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे हिन, नूहिन, कौम नूहिन, नूह की कौम। मुसन्ना का लफ्ज़ है लड़कियों की किताब। अब यहाँ पे ये जो लड़कियां हैं ये दो हैं, लड़कियों की किताब। किताब के लिए किताबु और लड़कियों के लिए हमारे पास एक जो और लड़कियों के लिए हमारे पास लफ्ज है बिन। बिन का मुसन्ना होगा बिनतानी, बिनतानी, किताबु बिनतानी। लेकिन ये बिनतानी लिखना यहाँ पर गलत होगा क्योंकि ये कवायद के खिलाफ है। इसके कायदे मुकम्मल है, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, एराब भी हल्का है, लेकिन ये हालत जर में नहीं है। बिनतानी की हालत जर होगी बिनतैनी, किताबु बिनतैनी, दो लड़कियों की किताब। अब औरतों की किताबें, औरतों की किताबें, यहाँ पर मुजाफ भी जमा है और मुजाफ इलैहि भी जमा है। ठीक है, मुजाफ भी जमा, मुजाफ इलैहि भी जमा। किताब को हम यहाँ लाएंगे और औरतों को हम यहाँ लाएंगे। किताबें की अरबी आती है कुतुब, कुतुब, कुतुबुन नहीं लिखना, कुतुबू लिखना है। वैसे असल में ये कुतुबुन था, लेकिन मुजाफ होने की वजह से इसकी तनवीन चली गई, यानी इसका एराब हल्का हो गया। कुतुबू। औरतों के लिए हमारे पास हालत जर में हो गया निसाई, कुतुबुन निसाई। अब यहाँ पर आप अलिफ लाम लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप अलिफ लाम लगा सकते हैं, इसमें अलिफ लाम की कोई हद नहीं है। किताबुन निसाई, औरतों की किताबें, औरतों की किताबें। अब अगर मैं कहना चाहती हूँ अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा वाहिद, तो बंदे को कहा जाता है अब्द और अल्लाह को अल्लाह। तो मैं लिखूंगी अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही। अब्द अलिफ लाम भी नहीं है, एराब भी हल्का है, अल्लाह हालत जर में है। अब्दुल्लाही, अल्लाह का बंदा। अब मुसलमान का घर, मुसलमान का घर, पहले घर उसके बाद मुसलमान। घर को कहा जाता है बैत, बैतु मुस्लिमिन या फिर बैतुल मुस्लिमी, बैतुल मुस्लिमी, मुसलमान का घर। यहाँ पर भी तनवीन नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है और हालत जर में। बस ये तीन ही कायदे हैं जो आपको हर मिसाल में मिल जाएंगे। मुसन्ना की तरफ आए, नू और सालिकी कौम, नू और सालिकी कौम। अब यहाँ पर कौम, कौमु नूहिन,
व सालिहिन, नूह और सालिह की कौम। अल्लाह के बंदे, यहाँ पर था ना अल्लाह का बंदा एक, यहाँ पर अल्लाह के बंदे जमा। अब बंदे के लिए अरबी आती है इबाद, इबादुल्लाही। कुरान पाक में सूरह फुरकान में इबादुर रहमान बताए गए हैं, यानी रहमान के बंदे, उनकी खुसूसियात आई हैं। आप देखिएगा सूरह फुरकान के आखिर में, तो इबादुर रहमानी रहमान के बंदे, या इबादुल्लाही अल्लाह के बंदे। इसके साथ साथ अगर हम एक मिसाल दें मुसन्ना की, तो मुसलमानों का घर, यानी दो मुसलमानों के दो घर। अच्छा, हम यहाँ पर करते हैं दो मुसलमानों के दो घर, सही है, दो मुसलमानों के दो घर। दो घर की अरबी आती है बैतानी, बैतानी, और दो मुसलमानों की अरबी आती है मुस्लिमानी, सही है। अब इस पर मैंने कवायद नहीं लगाए हैं, कवायद अब आप मुझे बताएं, फिर मैं लगाऊंगी, सही है। बैतानी अलिफ लाम आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये इसका एराब हल्का है, बैतानी एराब हल्का है नहीं। एराब किस तरह हल्का होगा, नून को आप गिरा देंगे, आपने नून गिरा दिया, ये एराब हल्का हो गया। वहां पर आपने पेश को गिरा दिया था, यहाँ पर आपने नून को गिरा देना है, क्योंकि यहाँ पर तो दो पेश है ही नहीं, तो हम कैसे एराब को गिराएंगे। मैं वही बात कह रही थी कि अगर ऐसे अस्मा हैं जो दो पेश, दो जबर और दो जेर के साथ नहीं आते, यानी तनवीन के साथ नहीं आते, उनका एराब बिल हर्फ होता है, किसी न किसी हर्फ से पता चलता है कि हालत रफा में या नसब में, तो फिर हम उनका नून गिरा देते हैं, ठीक है। बैता नी नहीं, बैता, सही है। अब मुस्लिमैनी, यहाँ पर भी हालत जर में आएगा, तो अल आपने इस पर लगा देना है, क्योंकि अलिफ लाम सिर्फ मुजाफ पर नहीं आएगा, मुजाफ इलैह पर हम अलिफ लाम लगा सकते हैं। बैतल मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, सही है। बैतल मुस्लिमैनी, दो मुसलमानों के दो घर, जमा की तरफ आए, मुसलमानों का घर, ठीक है, मुसलमानों का घर। घर की अरबी आते हैं बैत, बैतुल मुस्लिमीना, मुसलमानों का घर। बैतु अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी हल्की है, और मुस्लिमीना हालत जर में है। तो ये हो गई वाहिद, मुसन्ना और जमा की मिसालें। अब हम कुछ मिसालें कुरान से देखते हैं, तर्जुमा करने की आप कोशिश कीजिएगा। अम्बाउल गैबी, अम्बाउ अलिफ लाम भी नहीं है और एराब भी हल्का है। गैब की खबरें, गैबी गैब, अम्बा खबरें, अम्बाउल गैबी गैब की खबरें। रिज़्क़ुल्लाही अल्लाह का रिज़्क़, रिज़्क़ुल्लाही अल्लाह का रिज़्क़। बदीउस समावाति वल अर्ज़, बदीउ इब्तिदा करने वाला, बदीउस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह कौन है, अल्लाह आसमान और जमीन की इब्तिदा करने वाला है। यहाँ पर आपने बदीउ एराब हल्का आपने देखा, और अलिफ लाम भी नहीं है, और समावाती भी हालत जर में, और अर्जी भी हालत जर में। बदीउस समावाति वल अर्ज़, आसमान, आसमान और जमीन का, आसमानों और जमीन का की इब्तिदा करने वाला। फिर अब्वाबुस समाई, अब्वाबुस समाई का मतलब क्या है, आसमान के दरवाजे। अब्वाबु जमा है, आसमान ये जमा नहीं है, वाहिद है। समावात इसकी जमा आती है। अब्वाबुस समाई आसमान के दरवाजे। मिल्लत इब्राहीमा, मिल्लत इब्राहीमा, इब्राहीम को अलिफ लाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये खुद ही खास है। इब्राहीम मिल्लत, ये असल में मिल्लतन था, लेकिन ये मुजाफ की वजह से मिल्लत यानी इसका एराब हल्का हो गया और हालत नसब में है। हालत नसब में क्यों है ये हम आगे सीखेंगे। मिल्लत इब्राहीमा, इब्राहीमा ये हालत नसब में नहीं है, धोखा मत खाइएगा, ठीक है। ये इब्राहीमा गैर मुनसरिफ है, यानी जो हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता। तो मिल्लत इब्राहीम
ये नसब में है, ये हालत जर में है, क्योंकि मुज़ाफ इलैहि हमेशा हालत जर में होता है। इब्राहीम की मिल्लत, इब्राहीम का तरीका। उसके बाद एक और मिसाल है खुतवात शैतानी, खुतवात शैतानी, ये यहाँ पर हालत जर में है। क्यों है हालत जर में? पीछे से कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। ये जब आगे हम कुरान पाक की आयत को समझेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अभी बस ये देख लें कि हालत जर में है, किसी भी वजह से है और इसका एराब हल्का है। असल में था खुतुवातिन, लेकिन ये खुतुवाती हो गया। खुतुवाती ये कदम कदम के लिए इस्तेमाल होता है। खुतुवाती शैतानी, शैतान के कदम। खुतुवात शैतान, शैतान के कदम। शैतानी हालत जर में है मुज़ाफ इलैहि होने की वजह से। अब ये क्यों हालत जर में है? ये उस पीछे कोई ना कोई रीजन होगा जो अभी हमने नहीं पढ़ा। फिर वलियुल मुमिनीना, वलियुल मुमिनीना, मोमिनीन का वली। अल्लाह कौन है? अल्लाह मोमिनीन का वली है। हुब्बुश शहवाती, हुब्बुश शहवाती, शहवात की मोहब्बत, शहवात की मोहब्बत। अब ये शहवात क्या है? ये जो आयत है उसमें पूरा बताया गया है कि शहवात में औरतें भी आती हैं, घोड़े, माल, मिल्कियत, पैसे वगैरह। तो हुब्बुश शहवाती, शहवात की मोहब्बत। यौमुल क़ियामती, अल यौम नहीं आया, ना ही यौमुन आया है। यौमुल क़ियामती, क़यामत का दिन। सही है। तो ये कुछ मिसालें थी मुरकब इजाफी की कुरान से। अब आखिरी आपने एक्टिविटी करनी है, वो ये है कि गलती की निशानदही। गलती की निशानदही करें। मैं कुछ ही 2-4 एग्जांपल्स ही आपको दूंगी, उसमें आपने बताना है कि इनमें कहाँ मैंने गलती की है। क्या गलत मुरकब इजाफी है? किताबुत तालिबु। अब देखिए इसमें क्या गलती है। किताबुत तालिबुन, खुद देखिएगा। गलती सामने होती तो मैं बहुत मजे से पूछती और बहुत अच्छा लगता है जब आप जवाबात देते, लेकिन अभी भी खैर है, आप नोट कर लें। असल तो मकसद तो सीखना है, फिर कैसे भी सीखे। नोट कर लें इसमें क्या गलती है। सही है। दूसरा है कलमुर रजुलूना, रजुलूना, रजुल आदमी, इसकी जमा आती है रिजाल, लेकिन यहाँ पर मैंने रजुलूना लिखी है, तो ये गलत है। यानी और रिजाल हालत जर में होता है, तो रिजाल की हालत जर क्या होगी वो भी आपने खुद सेट करना है। फिर अल मदरसतुल, अल बनातु, अल बनाती, अल मदरसतुल बनाती। अब आपने यहाँ पर गलती की निशानदही करनी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको गलती आसानी से मिल जाएगी क्योंकि शुरू में ही है। फिर किताबुन अत्तुल्लाबुन, किताबुन अत्तुल्लाबुन, इसमें 2 गलतियां हैं। कौन सी है? मुज़ाफ में भी है और मुज़ाफ इलैहि में भी है, और अब देखें कि वो कौन सी है। अल अक़लामु रिजालन, इसमें भी 2 गलतियां हैं, आप खुद नोट करें कि वो कौन सी है। फिर बई सलामा, बैतुस्सलामा, सलामती की। अगर यहाँ पर भी गलती है, गलती की निशानदी करें, देखें कौन कौन सी गलती है। फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल मुरकब इजाफी में वजाहत के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मुरकब है जो अरबी ज़बान में बहुत इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। तो इसका इस्तेमाल ज़मायर के साथ भी हुआ है, और ज़मायर हमने हालत जर और नसब वाले नहीं पढ़े, वो भी हमने पढ़ने हैं। तो कल हम फिर मुरकब इजाफी में ज़मायर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।